निखिल अपना कैमरा ऑन करिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया। आई एम डूइंग वेल, थैंक यू मैम। निखिल एंड सोनाली अपना कैमरास ऑन करिए एंड वी विल गेट स्टार्टेड। बच्चे तुम लोग तीन चार लोग तो क्लास में आते हो, उसमें भी कैमरा ऑफ कर लेते हो। बताओ कैसे काम चलेगा? स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, कैमरा ऑफ होने पे क्लास से आउट। और तुम लोग कुल दो ही आए हो, किसको आउट करने सर बताओ? हम लोग तो निकाल देते हैं क्लास में से सर, पता है आपको? 10 स्टूडेंट्स बाहर, जो बच्चे वीडियो ऑन नहीं करते बाहर। अब यहाँ बच्चे ही इतने हैं कि तुम किसको निकालें और किसको रखें। निखिल वीडियो ऑन करिए बेटा। ऐसा कैसे है कि आप ऑन नहीं कर रहे हैं इतना कह के भी? निखिल नागर, okay, so let's get started. Okay, so we were doing questions with bijective functions. Okay, so okay, Sonali has dropped out, it looks like. It's okay, fine. So there is a function given where it goes from R to R. Okay, the domain is R and the codomain is R. Fx is defined as 2x plus 1. Find if the function is bijective. ठीक है, तो कैसे करेंगे हम ये? देखिए, मैंने आपको जो मेथड्स बताए हैं, एक तो जो है सबसे सिंपल हम कर लेते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। सो 2x plus 1 का क्या मतलब है? It's a line, right, with the slope of 2 and y-intercept of 1, right? So अगर ये ऐसा है लाइन, तो we can see that wherever we draw a horizontal line, right, it will only cut it at one point. And there is no part of y-axis where the line has no intercept. So you cannot draw a line like this, which will not cut it anywhere. Okay, so it is very easy to see that it is bijective. It's very easy to see, right? But now we should also be able to prove it एनालिटिकली। तो हम एनालिटिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो दो तीन मेथड्स होते हैं। लेट्स यूज वन मेथड वेयर लेट्स से देयर we will find fx1, which is 2x1 plus 1, fx2, which is 2x2 plus 1, if fx1 is equal to fx2. It means 2x1 plus 1 is equal to 2x2 plus 1, right? Right? So it means x1 is equal to x2. Okay, this implies f is injective. Okay, how will we prove that it is surjective? How can we prove it is surjective? So y is equal to 2x plus 1 hai. So I can say that x is equal to y minus 1 by 2. So for each value of y, there is only one value of x that is injective, and for any given value of y, the value of x exists, right? There is no value of y for which x does not exist as a real number. Okay, so implies x exists in R for all values of y.
ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। तो दोनों तरह से हमें प्रूव करना आना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया? निखिल वीडियो ऑन रखिए बेटा। ये how will we do this question now, where f goes from n to n, fx is equal to 2x plus 1, find if the function is bijective. कार्तिक कैमरा ऑन करिए, सोनाली, निखिल। okay, fx is equal to 2x plus 1, it goes from n to n. so कैसे पता करेंगे कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है? so my first question is graph method a good method now? See, we just did a very similar question. There is a very small difference. Here it went from R to R. Now it's, and we also use the graph to prove it. But now there is a change in the question. It goes from n to n, natural numbers to natural numbers. इतना छोटा सा डिफरेंस है क्वेश्चन में, तो कि अब मैं पूछ रहा हूं, इज ग्राफ मेथड नाउ अ गुड मेथड? Who can answer this? Sonali and Nikhil, video on करिए. Who can answer this? मैंने कल क्या बताया था आपको कि जो ग्राफ मेथड है वो रियल टू रियल वालों में ही यूजफुल होता है, बाकियों में कंफ्यूजिंग हो सकता है, आप मत यूज करिए. सो डू नॉट यूज द ग्राफ मेथड. okay, so let's do it analytically, right? let's do it analytically. तो हम सबसे पहले इंजेक्टिव के लिए चेक करते हैं. ओके, तो इंजेक्टिव के लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? बताइए क्या करेंगे इंजेक्टिव के लिए चेक करने के लिए? हम कहेंगे कि f x1 लिख लेते हैं, 2x1 plus 1 and f x2 if f x1 सर ये is, fx1 और fx2 इक्वल आने चाहिए. हाँ, if these two are equal, ठीक है, तो we will see if x1 is equal to Then x2. function is injective. ठीक है, तो 2x1 plus 1 is equal to 2x2 plus 1. okay, we can see that x1 is equal to x2. there is no other solution, so we can say is the only solution. okay, it should be the only solution, it should not be one of the solution. ठीक है, बुक में शायद ये बात लिखी नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, right? so it should be the only solution and then we can say it is injective. ठीक है, लेकिन हमें तो बाइजेक्टिव चेक करना है, तो सर्जेक्टिव के लिए भी चेक करना पड़ेगा. लेट्स चेक फॉर इफ इट इज सर्जेक्टिव. ठीक है, सो सर्जेक्टिव को कैसे चेक करेंगे? we will write it in terms of y is equal to 2x1 plus 1. 2x1 की तो जरूरत नहीं, 2x plus 1 लिखा, तो x is equal to y minus 1 by 2. right? Now, for each value of y, does there a value of x? Is a value of x available for each value of y? क्या सर फिर से बताना. क्या x exist करता है for every value of y?
No, sir. It does not. When it doesn't exist, when y is, if y is even, x does not belong to n. Does not belong to n. Right? So इसका क्या मतलब हुआ? Not surjective. और क्योंकि सर्जेक्टिव नहीं है इसलिए फाइनल रिजल्ट आया हमारा नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसको ध्यान से समझिए कि यही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें r गोज टू r था, तो फंक्शन वही है 2x प्लस 1, और ये क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन है इन केस ऑफ रियल नंबर्स। बट यही फंक्शन जब हम एन टू एन करते हैं इसको, इट इज नो मोर बाइजेक्टिव। अंडरस्टूड? सो जब हम बाइजेक्टिव के लिए देखते हैं तो हमें पहले ये चीज बड़े गौर से देखनी चाहिए कि द फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन क्या है। उसके बिना सॉल्व करेंगे यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर। ठीक है? Okay, let's move forward. Now let's do a few more questions. If A is equal to a given set 7, 8, 9 and B is another set 7, 8, 9, which is practically the same set, and F is onto, ठीक है? F कैसा फंक्शन है? onto है, surjective है, from A to B. Okay, then which of the following is correct? You have to give the best possible answer. F is 1 to 1, F is bijective, F may be 1 to 1 or many to 1. Okay, none of the above. None of the above. बताइए, हमें ऑन टू बताया गया है, लेकिन क्या ये 1-1 भी है? अगर 1-1 भी होगा तो फिर बाइजेक्टिव भी होगा, राइट? सो एक बात तो आप समझ ही लीजिए कि ये आंसर नहीं हो सकता। कैन समबडी टेल मी ये आंसर क्यों नहीं हो सकता? Why can't A be the answer of this question? इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड में। पहले आप ये बताइए कि why can't A be the answer? निखिल, सोनारी, गजब, आप तीनों ने वीडियो बंद किए हुए। बेटा आपको क्या प्रॉब्लम क्या है वीडियो ऑन रखने में? See, this is a mandate. ये ऐसा नहीं है कि हम आपको ऐसे ही कह रहे हैं, ये मैंडेट है। कीप योर वीडियोज ऑन। गजब, निखिल, निखिल वीडियो ऑन करिए बेटा। आपको बहुत बार कह दिया मैंने, अदरवाइज आई विल हैव टू रिमूव यू। चुप रहोगी? F is 1 to 1 तो आंसर हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन का y, इवन विदाउट सॉल्विंग इट। आंसर निकाले बिना ये बताइए कि A आंसर क्यों नहीं हो सकता? Nobody can answer that. देखिए, अगर 1 to 1 होगा, ऑन टू तो पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा फंक्शन? तब तो बाइजेक्टिव हो जाएगा ना फंक्शन। तो 1 to 1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 1 to 1 होगा तो फिर बाइजेक्टिव ही होगा फंक्शन। ओके, वी ऑलवेज हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट आंसर। ओके, जब ये लिखा होता है इसको ऐसे पढ़िए, बेस्ट आंसर। ठीक है, तो ये बेस्ट आंसर तो हो ही नहीं सकता अगर सही भी है तो।
लेकिन अब पहले ये बताइए कि क्या ये 1 1 है? लेट्स फर्स्ट चेक, इज दिस फंक्शन 1 1? राइट? देखिए ये ऑन टू है, इसका मतलब ये है कि यहां पे एक भी वैल्यू खाली नहीं है। राइट? अगर मान लीजिए इसकी मैपिंग ऐसी हो जाए, तब एक वैल्यू तो तब तो ये जो है, अगर ऐसा हो जाए तो यहां पे तो एक वैल्यू खाली रह जाएगी। राइट? अब दूसरा क्या होगा? तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। दूसरा क्या हो सकता है कि ये ऐसा हो, तब एक वैल्यू खाली रह जाएगी। क्या कोई ये तरीका है कि मैं सारी यहां वैल्यूज यूज करूं लेकिन फिर भी दो का एक ही वैल्यू हो? ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। राइट? क्योंकि यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है और ऑन टू है फंक्शन, कोई भी वैल्यू खाली नहीं रहनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सब यूनिकली मैप्ड हो, क्योंकि दोनों का साइज सेम है। और ये 3 के लिए नहीं है, ये 4 5 किसी के भी लिए हो। अगर a टू b जा रहा है और na इज इक्वल टू nb एंड फंक्शन इज ऑन टू, तो फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। आप याद भी रख सकते हैं ये रिजल्ट। राइट? सो द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ओके, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। ऑन टू होना हमेशा नहीं बताता है कि बाइजेक्टिव है। किस केस में बताता है? जब डोमेन और कोडोमेन की कार्डिनैलिटी सेम होती है, तब ऑन टू प्रूव कर दिया तो बाइजेक्टिव ही हो गया खुद ही। ठीक है? ओके, लेट्स मूव ऑन। इफ फंक्शन f, okay, which goes from a closed interval of 0 to pi by 2 to the entire r given by fx is equal to sin x is क्या फंक्शन है ये? बस ये है फंक्शन। राइट? बताइए, ये 1 1 है, बाइजेक्टिव है, क्या है? सर 1 1। तो ये 1 1 है। क्यों? अगर जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट करता है वहां पे अगर मैं कोई भी लाइन खींचूं तो वो एक ही पॉइंट पे कट करती है, ये तो तय है बात। राइट? तो ये 1 1 तो यस है, सर। लेकिन ये बाइजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 से ऊपर का जो पार्ट है, क्योंकि डोमेन, कोडोमेन क्या है? आर है, और कोडोमेन में इतने पोर्शन में ग्राफ है ही नहीं, केवल 0 to 1 में ग्राफ है। और इसका मतलब y की वैल्यूज जो 1 से बड़ी हैं या 0 से छोटी हैं, उनके लिए प्री इमेजेस एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो ये सर्जेक्टिव नहीं है, केवल 1 to 1। वेरी गुड कार्तिक। इफ अ फंक्शन f
goes from A to B is a bijective, is a bijective function, then number of elements in range of f is n of b. The function number of elements in the range of f is n of a. N of a is equal to n of b. All of the above are true. सर इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा। वेरी गुड। ओके, सो देखते हैं हमारे पास, ठीक है, वन देखिए, वन के लिए सब में इक्वल टू है ना, इक्वल तो नंबर ये ऑफ। बाइजेक्टिव है, तो सबसे पहली बात है कि ये 1 1 है। यस सर। ठीक है, यहाँ पे नथिंग इज लेफ्ट आउट। Why? Because it is ऑल हैव अ surjective. यूनिक इमेज। It is surjective. No, because it is surjective. Surjective का मतलब on to, यहाँ कुछ नहीं बचा है, right? यस सर। और nothing is left out here. Why? Because इसका क्या रीजन है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, अनमैप्ड। यहाँ अनमैप्ड नहीं बचा है क्योंकि सर्जेक्टिव है। यहाँ अनमैप्ड नहीं है, इसका क्या रीजन है? बिकॉज इट इज अ फंक्शन। मैंने कल भी आपको बताया था कि फंक्शन में डोमेन में कुछ भी खाली नहीं रह सकता है, राइट? एवरी एलिमेंट इन डोमेन नीड्स टू हैव एन इमेज। तो इसका मतलब ये सब मैप्ड है, खाली कहीं पे भी कोई नहीं है, तो इसका मतलब जितने एलिमेंट्स यहाँ हैं उतने ही एलिमेंट्स यहाँ हैं। ठीक है, तो रेंज ideally now is n of b, which is true by definition, but n of b is equal to n of a, इसलिए ये भी सच है और ये भी सच है। अगर ये तीनों सच है तो the final correct answer that we have to write is D, right? The final correct answer is D. Let's do this. If fa is equal to fb implies that a is equal to b, then f is what does this mean? Who can answer this? निखिल, वीडियो ऑन करिए बेटा। आप वीडियो क्यों बार बार ऑफ कर रहे हो? ये तो हमारा डेफिनेशन का ही पार्ट है, राइट? दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड वी यूज फॉर 1 1, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शंस। तो बी इज द आंसर। ये बाय डेफिनेशन है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। लेट्स मूव ऑन। इफ रिलेशन R A comma B is equal to A comma B are words in English Oxford Dictionary. Number of letters in A and B are same. Okay. एक रिलेशन है R जिसमें A और B क्या है? Words from English Oxford Dictionary. Okay. और इसमें number of letters in A are same as number of letters in B. ये एक ऐसे डिफाइंड है, ठीक है, सेट relation, sorry. So now write the set
set in roster form. Okay, you have to give 5 elements are enough. You don't have to write the complete set. सर इसमें क्या करना है हमें? You have to write the value of, you have to write a set, okay, which is written as this. इस सेट को कैसे लिखेंगे? How will we do this? सर इसमें करना क्या है हमें? समझ नहीं आया क्वेश्चन। देखिए, राइट द सेट, एक सेट लिखना है हमें। कौन सा सेट जी लिखना है? सर। जिस सेट को ये मैंने बताया, ये वाला सेट बताओ क्या है? ये एक सेट है ना? यस सर। किस तरह का सेट है ये? सर ये रोस्टर फॉर्म तो नहीं है। रोस्टर फॉर्म में तो लिखना है अभी हमें। ये कौन सी फॉर्म है सेट की? ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेट है जो मैंने कल आपको पढ़ाया है। स्क्वायर ब्रैकेट में कौन से सेट्स को लिखते हैं? कैन यू रिमेम्बर नाउ? स्क्वायर ब्रैकेट में कौन सा सेट लिखते हैं? इक्विवेलेंस क्लासेस को, राइट? रिमेम्बर? तो अब सेट है इक्विवेलेंस क्लास सेट, तो इसमें क्या क्या होगा? ऑब्वियसली सेट तो होगा ही, बाकी कौन से होंगे एलिमेंट्स? किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? चलिए ये वर्ड्स होंगे, है ना? रिलेशन में तो वर्ड्स हैं, तो वर्ड्स होंगे। किस तरह के वर्ड्स होंगे? जिनमें सेम लेटर्स हैं। तो सेट के में कितने लेटर्स हैं? 3 हैं, तो कोई भी लिख लीजिए, आर, द, 10, कैट, रेट, गेट, रेट, कुछ भी लिख दीजिए, and you can just put 3 dots, right? Because as I said, 5 elements are sufficient. Obviously पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 3 लेटर्ड वर्ड्स नहीं लिखने हैं हमें, तो मैंने ऊपर ही मेंशन कर दिया कि 5 एलिमेंट्स आर सफिशिएंट। ठीक है, अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सेट फैन। क्या बनेगा फैन? फैन में फैन तो होगा ही, हैन, तो फैन तो होगा ही, हैन बोल दीजिए, और मैन बोल दीजिए सर। मैन, 10, कैन, 5 हो गए, छोड़ दीजिए। नाउ द थर्ड पार्ट, हाउ डू द आंसर्स इन 1 and 2 डिफर? इस और इसमें क्या फर्क है? मतलब जिसका डैट हो सकता है, डैट का दिस हो सकता है। Is there any difference between this
and this. देखिए इसमें ये कौन सा सेट है? 3 लेटर्ड वर्ड्स का। ये किसका सेट है? 3 लेटर्ड वर्ड्स का। So what is the difference between the two? No difference, they are the same. So third का आंसर है they are same. They are the same sets. Understood? They are very big sets, I know, but they are the same sets. Okay. Now let's fill in the blanks for the last part, which will clarify all the doubts. You could call the answers of 1 and 2 as the what of the set? Equivalence classes. Of the set, which set? Set of words in English, Oxford Dictionary. Under the के बाद क्या लिखेंगे? Under the relation R. ठीक है, ये है रिलेशन का नाम. So under the relation R. Understood? देखिए बहुत सिंपल सा दिखता है ये चैप्टर, लेकिन मैंने ज्यादातर ये देखा है कि अच्छे स्टूडेंट्स को उसका मीनिंग नहीं समझ आता, क्योंकि बस रटा हुआ होता है, राइट? उनको जैसे ये सिंपल क्वेश्चंस दिख रहे हैं, लेकिन वो कर सकते हैं, लेकिन उसका जब एग्जाम में आते हैं उसका मीनिंग नहीं समझ पाते. क्वेश्चन इसमें कभी डिफिकल्ट नहीं होता है, मीनिंग समझ जाओगे तो कर दोगे. कैलकुलेशंस तो होती नहीं है इस चैप्टर में. If A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, then write a relation R that is the smallest possible equivalence relation defined in A. सबसे छोटा equivalence relation क्या डिफाइन हो सकता है इसमें? बताइए. सर इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है इनमें. इसका एक ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है जो सबसे छोटा हो, उससे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल ना हो बनना. The smallest possible equivalence relation बनाना है. 1. देखिए सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना जरूरी है कि रिफ्लेक्सिव तो होना ही होना पड़ेगा ना. Yes, तो सब ए करके तो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए. ए शुड ऑलवेज बी ट्रू. सर आई को कर रहा है सर, मतलब इसका मतलब है कि आई जो मतलब जो समझे आप? जो सॉरी कर रहा है सर, वो आई को इक्वल करना है ना. ये सबसे छोटा Yes, sir. इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल है इसमें. मतलब मैम वो Okay, now write 1 under the relation R. अब बताइए 1 क्या होगा? 1 का सेट बताइए क्या है? इक्विवेलेंस क्लास 1 क्या है? क्या मतलब होता है इक्विवेलेंस क्लास का? वो सारे एलिमेंट्स जो इस एलिमेंट से
रिलेटेड हो और आपस में भी रिलेटेड हो। तो ऐसी क्या चीज है जो 1 से रिलेटेड है? देखिए 1 से 1 रिलेटेड है, बता रहा है 1 से 2 रिलेटेड है, नो सर, 3, 4, 5 नो, कोई केवल 1 ही नहीं। है। तो ये हमारा है इक्विवेलेंस क्लास 1। उसी तरह इक्विवेलेंस क्लास 2 की क्या होगी इस वाले केस में? 2 खाली। इक्विवेलेंस क्लास 3 क्या होगी? केवल 3, राइट? एंड सो ऑन। How many partitions of A exist under R? Now I am asking number of partitions. कितने पार्टीशंस हैं A के अंडर R? पार्टीशंस कितने होते हैं? जितनी इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं। कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं यहां पर? How many equivalence classes are there? देखिए एक तो ये है 1 है, एक 2 है, एक 3 है। इस तरह कितनी है इक्विवेलेंस क्लासेस? देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 होगा, 5 होगा, 5 ही तो हैं। कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं? 5। तो पार्टीशंस कितने हैं इसके? इसमें 5 पार्टीशन बने। इस सेट को कितनी हिस्सों में बांटा गया? 5 पार्टीशंस। हर एक पार्टीशन में एक एक एलिमेंट है, ठीक है? ये सबसे सिंपल इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ट्रिवियल इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। ओके, नाउ a similar question, but we have to do the opposite. A is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Write a relation R that is the largest possible equivalence relation. Define in A. क्या होगा वो रिलेशन? लार्जेस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे कि लार्जेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। बोर्ड में भी, कंपटीशन में भी, हर जगह नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, या फिर बाय उस तरह के होते हैं कि इक्विवेलेंस प्रूव करिए, उस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं। बस ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस नहीं है ये। तो R is equal to what? A cross A. The Cartesian product. वो सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन है जिसमें कि हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, खुद से भी और दूसरे एलिमेंट से भी रिलेटेड है। हर एक एलिमेंट।